Hello, a very good morning to all of you students. So today we are going to discuss our next chapter of the history, which is name is peasants and farmers. Peasant and farmers मतलब किसान भाई जो है हमारे, इन्हीं के बारे में हिस्ट्री जो है हम अब पढ़ेंगे, इनकी क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी, किस तरह से इसका एवोल्यूशन हुआ. Let's see what we have here in this chapter. Previous to chapter you need to you read about the pasture and the forestry, about those who depended on these resources. You learn about the cultivators, pastorals, groups of tribals, and you saw how the access and access the pasture was regulated by a modern government, and these restrictions and the control affected the life of those who had these resources. The chapter you will read about the peasant and farmer with a focus on the three difficult countries. You will find three different countries, you will find that about more the quarters in the England and wheat farmer of the USA and the opium producer of the Bengal. You will see that happen to different crops of the coming of modern agriculture, what happened in different region of the world are integrated with the capitalist market, and by comparing the histories of different places, how these histories are different even though some of the reasons are similar. We begin our journey with England where the agriculture partition first occurred. अब देखिए यहाँ पे बात की बताया गया है कि किस तरह की जो तीन फार्मिंग चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यूएसए की तो वीट कितना हो रहा है, ओपीएम प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें तो जो बंगाल है, कॉटेजर्स की बात कर लें तो इंग्लैंड है. तो हर जगह की जो स्पेसिफिक क्रॉप है उनको किस तरह से उगाया जा रहा है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें की जा रही है, जो भी इंटीग्रेटेड मार्केट है वहाँ कैपिटलिस्ट मार्केट, उन सारी चीज़ों के बारे में जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. द कमिंग ऑफ अ मॉडर्न एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड. अब मॉडर्न एग्रीकल्चर इंग्लैंड में क्या कैसा है चलिए देखते हैं. On 1st June 1830, a farmer in the northwest of the England found his barn and the haystack reduced to ashes by a fire that started at night. In the month that followed, cases of such fire were reported from the numerous districts. At the times, only the rick was burnt. At the other time the entire farmhouse. Then on the night of the 28th August 1830, a thrashing machine of the farmer was destroyed by a labor in the East Kent in the England. In subsequent 2 years the yacht spreads over southern England and about the 387 thrashing machines were broken. Through this period the farmer received the threatening letters urging them to stop using machine that deprived the workmen of their livelihood. Most of these letters were signed in the name of the Captain Swing. Alarmed, the landlord feared attacks by an armed band at night. Many destroyed their own machines. Government actions was severe. There was a subject of rioting were rounded up. 1,976 prisoners were tried and 9 men were hanged in the 505 transported. Over 450 of them Australia and 644 are put behind the bars. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो रिक्स को बर्न किया गया है, जिस तरह से थ्रेशिंग मशीन्स को डिस्ट्रॉय किया गया है, यानी लेबर से कहीं ना कहीं क्या है किस तरह का वहाँ पे माहौल था, काफ़ी ज़्यादा हमें प्रोटेस्टिंग माहौल जो है हमें पता चल रहा है यहाँ से. तो इस तरह पे क्या की मशीन्स को बर्बाद किया गया, कई जो एक्शंस ने क्या क्या एक्शंस लिए गए गवर्नमेंट द्वारा, किस तरह से उसे हैंडल किया गया, कितने लोगों को प्रिजन्स किया गया, कितने लोगों को हैंग किया गया, ट्रांसपोर्ट किया गया, या फिर कितने लोगों को बार्स में भेजा गया, यानी जेल के पीछे सलाखों के पीछे डाला गया, उनके कैलकुलेशंस यहाँ पे बताए गए हैं. कैप्टन स्विंग वॉज अ मिथिक नेम यूज्ड इन दिस लेटर्स, बट हु वर द स्विंग रियॉट्स? Why did they break a thrashing machine? Why they are protesting against? To answer this question, we need to trace the development of English agriculture in the 18th and 19th century. लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों हुई, किसने इस प्रोटेस्ट को बढ़ाया, क्यों थ्रेशिंग मशीन को बर्बाद किया गया, ये सारा प्रोटेस्ट किस चीज़ के अगेंस्ट है, ये सारी चीज़ों के क्वेश्चन के आंसर हमें आगे मिलेंगे कि क्या हुआ कैसे हुआ. चलिए देखते हैं आगे. The time of open fields and commons. Over the late 18th and the early 19th century, the English countryside changed dramatically. Before this time, in a large part of the England, the countryside was open. It was not a partitioned into an enclosed land privately owned by a landlord. Peasants and the cultivators on the strips of land around the village they lived in. At the beginning of each year, a public meeting, each villager was allocated a number of strips to cultivate. Usually, these strips were of the varying quality, often located at different places. Not next to each other, the effort was to ensure that everyone had a mix of good and bad land. Beyond the strips of the cultivation lay a common land. All the villages had access to the common, and they were pastured their cows and grazed their sheep, collected fuel, wood, firewood, and everything. Poor common land essential for survival.
अब देखिए ओपन फील्ड की बात की गई तो ओपन फील्ड जो है कई तरह से लोगों जो कंट्री साइड होती थी उसे यूज़ की जाती थी। कई सारे पीसेंट्स जो हैं उसे कल्टिवेशंस के लिए यूज़ करते थे। कई विलेजेस वहाँ पे रहते थे जो उसमें खाना उगाना, बाकी की वेजिटेबल्स ग्रो करना और सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं वो यूज़ हो रहा था। तो ये सारी जो स्टेप्स थी ये कल्टिवेशन जो है ये कॉमन लैंड में ही हो रहे थे। कई लोगों को यहाँ पे एक्सेस था, कई लोगों के काउस और बाकी की चीज़ें जो है यहाँ पे पल रही थी क्योंकि वहाँ का जो भी पास्चर वगैरह वो उसे खाती थी, वहाँ पे उसी तरह से जी रही थी। तो कहीं ना कहीं काफ़ी इसेंशियल था सर्वाइवल के लिए। supplemented their margin income, sustained their cattle and helped them to tide over at bad times and crops failed। अब देखिए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है इनके लिए जो थी हेल्पफुल थी, कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे इस चीज़ों से क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या है कि ये सारी चीज़ें जब भी उनकी क्रॉप्स फेल हो जा रही हैं या कोई इस तरह का बुरा समय आ रहा है तब भी उनके पास खाने और खिलाने के लिए कुछ होता था। In some parts of the England, the economy, open field and the common land had started changing from about the 16th century, when the price of wool went up in the world market in the 16th century. Rich farmer wanted to expand the wool production to earn a profit, and they were eager to improve the sheep breed and ensure that a good feed for them. They were keen on controlling large areas of the trying enclosing a common land, building hedge and round, and villages who had small cottage on the commons, and they prevented the poor from entering to the enclosed field। अब देखिए कहीं ना कहीं जो है अगर हम मिड सेंचुरी की बात करें तो उस वक्त जो है वुल का मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा तगड़ा चल रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रहा था। कई रिच फार्मर्स जो थे इसी वुल के फार्मिंग को जो और ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे, तो काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग और अच्छा खाना पिलाना जो है वो शिप्स के लिए किया जा रहा था ताकि कहीं ना कहीं जो है इस सारी चीज़ों को और बढ़ावा मिले और ज़्यादा प्रॉपर्टी वो बना सकें। Till the middle of the 18th century, the enclosure movement proceeded very slowly. The early enclosures were usually created by individual landlords and they were not supported by the state or the church. After the mid 18th century, however, the enclosure movement swept through the countryside, changing the English and landscape of ever. Between 1750 and the 1850, 6 million acre of land were enclosed and British Parliament। देखिए यहाँ पे जो ये मैप शो किया गया है, मतलब कहाँ पे कितनी मशीन्स को बर्बाद किया गया, क्या कैसी चीज़ें हुई वो वहाँ की यहाँ पे शो की गई हैं। बाय द प्रोटेस्ट न्यू डिमांड्स ऑफ अ ग्रेन। अब न्यू डिमांड्स ऑफ ग्रेन क्या है? वाई वॉज देयर सच अ फ्रैंटिक एफर्ट टू एनक्लोजर अ लैंड? वाई डिड द एनक्लोजर इम्प्लाई? द न्यू एनक्लोजर वर डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड एंड अनलाइक द 16th century enclosure that promoted a sheep farming, the land being enclosed in the late 18th century was for a grain production. New enclosures were happening in a different context and they become a sign of changing time. From the mid-18th century, the English population expanded rapidly between 1750 and 1900. It multiplied over 4 times, mounting from 7 million in 1750 to 21 million in 1850 and 30 million in 1900. This meant an increase in demand of a food grain to feed the population. Moreover, Britain this time was industrializing. More and more people began to live and work in urban areas. Men from rural areas migrated to the towns in search of jobs to survive for the food grains in the market. As the urban population grew, the market of the food grain expanded, and when demand increased rapidly, food grain prices rose. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कहीं ना कहीं जो है काम के अगर हम बात करें तो काम के लिए कई सारे लोग जो है रूरल एरिया से अर्बन एरिया के मूव करना शुरू कर रहे थे। और जहाँ जहाँ जैसे जैसे ये मूवमेंट बढ़ रहा था तो कहीं ना कहीं क्या है, पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है, रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, तो फूड ग्रेन की प्राइस भी जो है कहीं ना कहीं बढ़ते जा रही थी क्योंकि लोग अगर ज़्यादा रह रहे तो उनके खाने का भी इंतज़ाम उतना होना चाहिए। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही थी तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, इन चीज़ों की प्राइसेस जो है वो टाइम टू टाइम बढ़ती ही चली जा रही थी। अगर हम सेंचुरी की बात करें 18th सेंचुरी की, उस समय तो फ्रांस और इंग्लैंड का जो है वॉर चल रहा था और इसकी वजह से कई सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो ट्रेड है ये ठप पड़ा हुआ था। तो प्राइसेस और भी ज़्यादा क्या है कहीं ना कहीं आसमान छू रहे थे, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। अंडर कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट जो है ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। लेकिन अगर हम बात करें तो बाकी एनक्लोजर तो बाकी की सारी चीज़ों की, तो उन जगहों की इतना ज़्यादा ये चीज़ नहीं हो पाती। बेसिकली जितनी डिमांड मार्केट में थी ग्रेन्स की उतनी पूरी कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। द एज ऑफ एनक्लोजर। अब चलिए देखते हैं एज ऑफ एनक्लोजर में क्या है।
There is a one dramatic fact that makes the period after the 1718 different from any earlier period in English history. In earlier times, the rapid population growth was most often followed by a period of the food shortages. Food grain production in the past had not expanded as rapidly as the population in the 19th century did not happen in England. Grain production grew as a quickly population, even though the population increased rapidly in 1868. England was producing about 80% of the food it consumed and द रेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट। अब देखिए एज ऑफ एनक्लोजर जब आया यहाँ पे क्या है बेसिकली इस पीरियड में प्रोडक्शन तो जो था ग्रोथ जो था ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। फूड प्रोडक्शन की जो हम बात करें ये बहुत जो क्या है एक्सपांडेड पास्ट के मुकाबले में उतना नहीं हो पाया था पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन 19th सेंचुरी आते आते तक कहीं ना कहीं इसका प्रोडक्शन जो है ग्रेन प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा क्विकली बढ़ गया था और ये इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया कि था कि वहाँ के जो लोग हैं वो जितना खाते हैं उतना 80% कंज्यूम करने के बाद जितना ज़्यादा जो बचा हुआ रहता था उसे क्या किया जाता था, इम्पोर्ट कर दिया जाता था। This increase in food grain production was made possible not by any radical innovation in agricultural technology। और ये जो प्रोडक्शन बढ़ा था इसमें किसी तरह का कोई रेडिकल इनोवेशन नहीं हुआ था न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में, but bringing a new land under cultivation and landlords are sliced by a pastoral land carved in an open field, कट अप द फॉरेस्ट कॉमन्स एंड टूक ओवर द मार्शेस इन द टाइम। मतलब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर एरिया जो है इनका फील्ड वो बढ़ गया था और वो फील्ड बढ़ने के कारण जो है कहीं ना कहीं क्या है बेसिकली उस सारी चीज़ों में बढ़ोतरी हो गई थी। किन चीज़ों में, ग्रेन्स में। दिस सीन डिस्कवर द प्लांटिंग दिस क्रॉप्स इम्प्रूवड इन द सॉइल एंड मेड इट अ मोर फर्टाइल। और कहीं ना कहीं जल्दी ही जो है इन्होंने डिस्कवर कर लिया प्लानिंग को कि किस तरह से हम सॉइल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, फर्टाइल कर सकते हैं और क्रॉप को और जल्दी क्या है हम बढ़ा सकते हैं और कई तरफ के डिफरेंट जो हैं वो हम कर सकते हैं। सो फार्मर बिकम कल्टिवेटिंग ट्रम्पिंग एंड द clover regularly and these crops become a part of the cropping system. Later findings showed that these crops had the capacity of increasing the nitrogen content of the soil. Nitrogen was important for the growth of the growth. Cultivation of the same soil over a few years depleted the nitrogen in the soil and reduced its fertility. By restoring the nitrogen, turning up a clover made a soil fertile once again, and we find out the farmer early 19th century। अब अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, कहीं ना कहीं जो नाइट्रोजन है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किस चीज़ का, बेसिकली सॉइल का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और कई बार अगर हम बात करें कई साल तो उस ज़मीन पर अगर हम खेती करें तो धीरे धीरे क्या होता है नाइट्रोजन का लेवल धीरे धीरे कम होता चला जाता है और जब उसका नाइट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा तो उसकी उत्पादकता यानी फर्टिलिटी क्या होगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो एक नया तरह की टेक्निक निकाली गई जिसके अकॉर्डिंग क्या है बेसिकली जो नाइट्रोजन फ्लश आउट हो चुका है उसको वापस से रीस्टोर किस तरह से करना है, वापस उसकी फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकला और ये इनक्लोजर्स जो थे नेसेसरी थे, काफ़ी लॉन्ग टर्म थे और क्रॉप रोटेशन जो है ये इम्प्रूव कर रहा था सॉइल को भी। और ये जो रोटेशन चल रहा था क्रॉप रोटेशन का तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा हेल्पफुल इसलिए हो गया था क्योंकि जो फर्टिलिटी बनी ख़त्म हो रही थी वो ना होते हुए बल्कि वो चीज़ें क्या हो रही थी, बनी रह रही थी। तो ये हमें कहीं ना कहीं एक्सपांड भी कर रही थी लैंड को और हमारे प्रोडक्शंस को भी। What happened to the poor? अब पुअर्स के साथ क्या हुआ चलिए देखेंगे आगे। Enclosure filled the pockets of the landlord, but what happened to those who depended on the commons of their survival? When fences come up, the enclosed land become exclusive property of the landowner. The poor could no longer collect their firewood from the forest or graze their cattle on the commons. They could no longer collect the apples and berries from the hunting animals or meat. अब देखिए जो लोग जो कहीं ना कहीं क्या है जो प्रॉपर्टीज़ थी जो भी जिस चीज़ों पे सर्वाइवल उनका चल रहा था वहाँ फेंसेस लगा दिए गए, उस चीज़ों को मना कर दी गई कि आप वहाँ जा नहीं सकते, आप वहाँ से एप्पल्स बेरीज और बाकी खाने पीने की चीज़ें कलेक्ट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं पुअर्स जो थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ रही थी। ये सारी चीज़ें जो उनसे बिलोंग करती थी उस लैंड से वो सारी चीज़ों को अब उन्हें प्राइस देना था और पुअर्स के पास इतना पैसा तो था नहीं कि वो इन सारी चीज़ों को अफोर्ड कर पाएँ। इन प्लेस where the enclosure happened to an extensive scale, particularly the mild lands and the countries around to the southern countries of the England, and this was a region that was most intensely cultivated and there was a greater demand of agricultural labor, but now they could
पुअरर फाइंड द सिक्योर जॉब्स। अब देखिए जो है, अगर हम बात करें जिस तरह के लैंड की, जो माइल्ड लैंड थे, अगर यहाँ पे ये लोग मूव हुए थे तो कहीं ना कहीं ये जो था इनके काम का था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड एरिया था और यहाँ पे एग्रीकल्चर लेबर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। तो जब पुअर यहाँ पे मूव हुए तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है जॉब तो मिल गई, ताकि वो जॉब के बेसिस पे वो क्या थे, कहीं ना कहीं सिक्योर थे। अर्लियर इट वॉज अ कॉमन फॉर लेबरर टू लिव विद लैंड ओनर्स एंड दे एट a master's table and helped their masters through the year, doing a variety of odd jobs. By 1800, this practice was disappearing. A laborer were being paid a wages employed only during a harvest time, as landowner tried to increase their profit and they cut the। अब देखिए कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जो पुअर्स थे वो एक साथ अपने मास्टर के साथ बैठ के खाते थे, पीते थे और कई तरह के जो दूसरे काम होते थे वो करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या है, कहीं ना कहीं लैंड ओनर ने इंक्रीज़ अपना प्रॉफिट जो है इंक्रीज़ करना शुरू किया, तो वो लेबर्स की जो वेजेस हैं उनको कट करना उन्होंने शुरू किया। एंड वर्क जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या हो रहा था, अनसिक्योर होता जा रहा था और इनकम इनकी अनस्टेबल हो गई थी। तो बहुत ही लार्ज पार्ट जो है पुअर का उन्होंने काम करना छोड़ दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ अ थ्रेशिंग मशीन। अब थ्रेशिंग मशीन का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, कभी आई और कैसे क्या हुआ। On the Napoleon War, the prices of the food grade were high and expanded a production vigorously. Fearing a shortage of the worker, they become buying a new threshing machine that had become the market. The completer of the insolence of the laborer, they having the habit too difficult for making them work, that they thought that would help them to reduce their dependence on the laborer. The Neolithic wars had ended. The thousands of the soldiers returned in the village and they needed to alternate the jobs to survive. But this was when the grain from Europe began flowing into England prices and the agricultural depression set in. Landowner began reducing the area of the cultivated and ended in the import of the crops is stopped. They tried to cut and the number of workmen they employed, the unemployed trumpet from the village to village and those the uncertain jobs, fear of a loss of their livelihood. अब देखिए कहीं ना कहीं जो थ्रेशिंग मशीन आई, तो ये क्या आने का इसका रीज़न था, जब मशीन को बर्बाद कर दिया गया तो नई थ्रेशिंग मशीन आने से कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि जो है अब लेबर का काम जो है ख़त्म हो जाएगा, अब उन्हें ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, तो मैन पावर में उनका खर्च उतना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ गलत थी, कहीं ना कहीं जो है उनका यूज़ होना ही था। लेकिन कई सारे लोग जो थे इस वजह से अनएम्प्लॉयड भी रह जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से प्राइस फूड ग्रेन का हाई हो रहा था उसी तरह से प्रोडक्शन भी जो है काफ़ी वाइग्रेसली जो है वो बढ़ता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का शॉर्टेज का भी डर था कि न्यू मशीन अगर हमने ख़रीद तो ली, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो इंसॉलेंस है लेबर की और जो हैबिट है हमें वो चीज़ ख़त्म हो जाए, मतलब ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाए बाकी चीज़ों को कर पाना या सोच पाना, जो डिपेंडेंस है लेबर का वो ख़त्म हो जाए। Conclusion. Coming of a modern agriculture in England, this meant many changes in the field. The poor were undetermined and the richer farmer expanded the production and sold the grain in the world market, made profit become powerful. The poor left their village in a large number and went from the Midland to the southern countries where the jobs were available, other to the criticized and income of the laborer become फेबल, द जॉब इनसिक्योर, देयर लिवलीहुड प्रिकेरियस। अब कहीं ना जो यही सारी जो कंक्लूजन निकली कि लोग जो है हट रहे थे या जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं देखिए ये नई मशीन्स आने से लोग भी इनसिक्योर हो रहे थे, क्योंकि अगर पूरा काम इसके ऊपर डिपेंड हो गया तो लेबर की जो डिपेंडेंसी थी वो ख़त्म हो जाती। अगर लेबर्स की डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए तो लोग क्या होंगे, अब ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, अनएम्प्लॉयड है तो पैसे नहीं होंगे और भूख की वजह से गरीबी क्या है और बढ़ती चली जाएगी, कई तरह की प्रॉब्लम्स और भी जो डिफरेंट है वो फेस करनी पड़ती। अब हम देखेंगे दूसरा, विच इज़ अ ब्रेड बास्केट एंड द डस्ट बाउल। Now let us travel across the Atlantic to the USA and let us see how the modern agriculture developed there and how the USA became the bread basket of the world. What is meant to the rural people of the America. At the time the common field were being enclosed in England at the end of the 18th century, settled agriculture had not developed on any extensive scale in the USA. The forest covered over 800 million acres and the grasslands of the 600 million acre. Figure 5 will give you some idea of what the natural vegetation was like at the time. Most of the landscape was not under the control of the white American till the 1780s. White American settlements were confined to a small narrow strip of the coastal land in the east, and if you traveled through the country at that time you would have met various Native American groups. Several of them were nomadic and some were settled. Many of them lived one by one hunting and gathering the fishing. Others cultivated corn, beans, tobacco and pumpkins. Still other
were the expert trappers through the whom European traders had secured their supplies of the beaver. And first since the 16th century figure you can see the location of the different tribes in the early 18th century. अब देखिए जो फॉरेस्ट रीजन यहाँ पे बताया गया है बेसिकली कि किस तरह से जो है यूएसए की अगर हम बात करें तो किस तरह की वहाँ पे खेती हो रही है और किस तरह से जो है एग्रीकल्चर वहाँ पे डेवलप होना शुरू हुआ मॉडर्न, और कैसे कैसे जो है यूएसए ब्रेड बास्केट बन गया पूरे किसका, वर्ल्ड का, ऑफ द रूरल पीपल ऑफ अमेरिका। क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई, किस तरह के चेंजेस हुए, वो बेसिकली यहाँ पे नंबर्स में बताए गए हैं। किस तरह से फॉरेस्ट एरिया जो है कवर्ड किया गया, वहाँ पे जो है वहाँ पे कल्टीवेशन किया गया, वेजिटेशन जो है वहाँ की चीज़ें उनका जो है यहाँ पे बेसिकली बताया गया है। तो बहुत सारा जो लैंडस्केप एरिया है ये वाइट अमेरिकन्स के अंडर नहीं था। तो ये काफ़ी नैरो स्ट्रिप जो है वो हमें मिला जो कि काफ़ी ज़्यादा ईस्टर्न पार्ट था, और उन्हें ये वहीं पे क्या है बेसिकली यहाँ पे बाकी की चीज़ें होना यहाँ पे शुरू हुई। द स्टोरी ऑफ द अब हम देखेंगे द वेस्ट वार्ड मूव एंड द वीट कल्टिवेशन। अब जो वेस्ट पार्ट मूव है या जो वीट कल्टिवेशन है वो कैसे आगे बढ़े चल देखते हैं। द स्टोरी ऑफ द एग्रीगेरियन एक्सपांशन इज क्लोजली कनेक्टेड टू द वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाइट सेटलर हु टुक ओवर द लैंड आफ्टर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1775 to 1783. The formation of the United States of America, the white American began to move westward by the time Thomas Jefferson became a president of the USA in 1800. Over a 7 lakh white settlers and moved to the Appalachian Plateau through the passes. And seen from the east coast, America seemed to be a land promise. Its wilderness could be turned into a cultivated fields. Forest timber could be cut off, export animals hunted by skin, and mountain mined by gold and the mineral. This meant that the American Indian had to be cleared from the mountain mine of a gold and the mineral, but this meant that the American India had to be cleared from the land in the decades after 1800, and the US government committed itself a policy of driving American Indians westward, first beyond the river Mississippi and then the further west. Numerous wars were waged, which is Indians were massacred and many of their villages burned, and the Indian resistance won many victories and war, but were ultimately forced to sign a treaties, give up their land and more westward. अब देखिए बेसिकली यहाँ पे बताया है कि क्या वेस्टवर्ड मूव था, किस तरह से वीट कल्टीवेशन को बेसिकली मचा रहा है। जो भी फॉरेस्ट की जगह थी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरिया काफ़ी ज़्यादा घिरा हुआ था और वहाँ पे किस तरह का कल्टीवेशन नहीं होता, तो जो फॉरेस्ट टिम्बर थे उसको कहीं ना कहीं जो है कमर्शियली यूज़ करना शुरू किया गया और उन एरियाज़ को फिर जो है कल्टिवेटेड फील्ड के रूप में बनाना शुरू किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट टिम्बर जो हम कट कर रहे थे और कई सारे एनिमल्स जो स्किन के लिए हंट किए जा रहे थे, ये सारी चीज़ें एज अ गोल्ड मिनरल हमारे लिए काम कर रही थी। कई तरह के माउंटेन माइंस भी पाए गए जहाँ पे गोल्ड मिल सके और काफ़ी सारी जगह जो मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक चीज़ कमिटेड कर ली थी कि इनकी अपनी पॉलिसी थी, जो भी अमेरिकन इंडियंस हैं जो कि वेस्ट वार्ड में रह रहे हैं रिवर के पास कहीं पे भी, इन्हें जो है कहीं दूसरी जगह दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इनका मैसकर हुआ, कई लोगों को जला दिया गया, कई विलेजेस हटा दिए गए अपनी विक्ट्री के लिए ताकि वहाँ पर वो अपनी चीज़ें को कर सकें। As the Indians retreated as the settled poured in they can be in a submissive waves, and they settled in the Appalachian Plateau by the first decade of the 18th century and then moved into the Mississippi Valley between 1820 and the 1850. They slashed and burned forest, pulled out the stumps, cleared the land for cultivation and built the cabins for clearing फॉरेस्ट क्लियरिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कई सारी चीज़ें हुई, कई सारे इंडियंस लोगों को हटाने की कोशिश की गई, बढ़ाया गया, कई सारे सक्सेसिव वेज में भी किया गया। तो मिसिसिपी वैलीज के पास का जो टाइम था ये बिटवीन 1822 और 1852 में यहाँ पे काफ़ी सारे स्लैश बर्न किए गए, लॉन्ग कैबिन्स को बनाया गया, काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट जो है क्लीन किया गया और यहाँ पे बेसिकली लैंड को कल्टिवेटेड करके फेंसेस लगाए गए और इन्हें इस लैंड में प्लॉफ किया गया और उसके बाद कॉर्न और वीट जो है इसे सो करना शुरू किया गया। तो सोविंग यहाँ पे स्टार्ट हुई। इन द अर्ली ईयर्स द फर्टाइल सॉइल प्रोड्यूस्ड गुड क्रॉप्स एंड व्हेन द सॉइल बिकम इम्प्रोविश एक्सटॉर्टेड इन वन प्लेस द माइग्रेट वुड द फर्दर वेस्ट। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जब तक एक ज़मीन से अच्छी पैदावार हो सकती थी तब तक बैठ के वहाँ पे काफ़ी सारी खेती करते थे और उसके बाद जब उसकी पैदावार कम हो जाए या लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाए तो वहाँ से उठ के क्या होता है, तो वो दूसरी जगह जाके फिर दूसरी जगह पर लैंड की कल्टिवेशन करना शुरू करते। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा प्रॉब्लम भी था लोगों के लिए कि एक बार से दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह में जाना। तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो थे इसके फॉलो हुए, क्या क्या चीज़ें हुई वो हम देखेंगे। द वीट फार्मर,
In the late 19th century, there was a dramatic expansion of production in the USA. The urban population is growing and the export market was becoming a very bigger. Demand increased and when the wheat price rose, encouraging a farmer for a wheat, the spread of the railway made it easy to grain from the wheat growing region in the western export. And early 20th century, the demand became further. During the First World War, the world market Russian supplies wheat were cut off and the USA had Europe. US President Wilson called up the farmer to need further time. The plant more wheat will be bean, he said. अब देखिए कहीं ना कहीं जो है वीट की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती चली गई थी और उसका प्राइस भी उसी तरह से बढ़ते चला जा रहा था। लोग जो है वीट का जो है अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो कहीं ना कहीं ज़्यादा होने लगा था। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो है वीट प्रोडक्शन की कहीं ना कहीं डिमांड और भी आ रही थी, लोगों को खाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना था कि प्लांट फॉर वीट जो है प्लांट मोर वीट एंड वीट विल विन ही सेट। जो उन्होंने कहा था, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जो कि विल्सन थे, उन्होंने कहा था फार्मर को बुला के कि और भी ज़्यादा प्लांट जो है लगाया जाए और ये जो वीट का प्लांट यानी गेहूँ का प्लांट ये क्या है ये जीतेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत डिमांड में थी और लोग जो है इसे और भी ज़्यादा खाना चाहते थे। Coming of a new technology, dramatic expansion was made possibly by a new technology 19th century। अब देखिए यहाँ पे जो है बेसिकली इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब 19th सेंचुरी आई तो कई तरह के नए मशीन्स और टेक्नोलॉजी का एक्सपांशन हुआ। तो और भी कई सारी चीज़ें जिस तरह का जिस तरह से हम खेती कर रहे थे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कई सारी चीज़ें मॉडिफाइड हुई और नई तरह की चीज़ों को यूज़ करना शुरू किया गया। इवन कई तरह से जो प्लव मशीन है ये क्या है वास्ट स्ट्रेचेस को क्लियरिंग करने में मशीन आती थी। यानी ये मशीन से क्या है जो भी चीज़ें हमने उगाई हैं उसे हम हार्वेस्ट कर सकते थे। अब देखिए एक क्या यहाँ पे नई नई फ़ोटोज़ जो हैं बताए गए हैं कि किस किस तरह से जो है उसकी कटाई को एक साथ हम कितनी ज़्यादा कर सकें, उन सारी चीज़ों को बढ़ाया गया। तो नई नई तरह की मशीन्स जो हैं यहाँ पे लाई गई थी जिनकी यहाँ पे इमेजेस शो की गई हैं। The crop in 1831, the Cyrus McDonald Karki invented the first wheat reaper, which could cut in the one day as much as the 5 कट विद अ क्रैडल इन द 16 मैन विद अ स्टिकल। अब देखिए उन्होंने जो मशीन लाई उसमें उन्होंने देखा कि कहीं वो एक बार में इतना काट देती जितना कि इतने सारे लोग और इतने सारे कट जो मशीन से इतने मिलके जितना कट करे उतना ज़्यादा वो कट करके हटा सकता है। तो वो हुआ एक मशीन के हिसाब से 500 एकड़ की जो है वीट वो अकेले ही 2 हफ्ते में बड़े आराम से कट कर सकते थे। तो उन्होंने ये जो मशीन्स बनाई कहीं ना कहीं ये न्यू टेक्नोलॉजी जब आई तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थी क्योंकि एक बार में कई ज़्यादा काम कर पाना उनके लिए क्या हो गया था ईजी हो गया था। So now here we see what happened to the poor. Poor farmer machines brought a misery. Many of these machines imagined the wheat prices would remain a profit with the flow in. If they had no money, the banks of a loan or those who borrowed found it difficult to pay bills. Many of them deserted their farms and looked for them elsewhere. As it be difficult to find mechanization and reduce the laborer, and the boom of the late 19th and the early century came to an end by the mid and after that. The most farmer faced a trouble. Production had so rapidly during the war and the post-war year that as a large surplus, unsold stocks piled by warehouses with the grain and vast amounts of the corn and wheat were get into the animal feed. What prices fell in export market. This created a grounds for a great aggregation of 1930s, ruined the wheat farmers everywhere. अब देखिए कहीं ना कहीं जो है जो पुअरर फार्मर्स थे जिन्होंने कई सारी मशीन्स जो थी खरीदी थी, मैनी ऑफ देम जो थे वो मशीन्स को इमेजिन कर रहे थे कि वीट का प्राइस जिस तरह से भी मिले बाकी का प्रॉफिट जो आएगा वो उसमें फ्लो इन हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं जो अगर उनके पास पैसे नहीं रहे तो बैंक से लोन तो उन्हें मिल ही जाएगा जिस भी तरह से वो उस सारी चीज़ों को कर सके। पर कहीं ना कहीं जो है ये कई सारी ये मैकेनाइजेशन जो था ये रिड्यूस्ड कर रहा था लेबर्स को। और ये जो था लेट 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये मिड सेंचुरी आते आते तक फार्मर्स ने बहुत तरह के ट्रबल्स जो थे फेस करने शुरू कर दिए थे। प्रोडक्शन जो था ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था रैपिडली और इसके बाद वॉर पोस्ट वॉर ईयर्स जो थे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लार्ज सरप्लस हो रहा था। यानी जो अनसोल्ड स्टॉक थे ये पाइल्ड अप होते जा रहे थे और नए स्टॉक्स आते जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो ये वास्ट अमाउंट की जो वीट और बाकी की चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें क्या होती कहीं ना कहीं बहुत लो प्राइसेस में बिक रही थी और एनिमल्स के खाने के लिए जा रही थी। तो ये जो है फार्मर्स को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घाटे का सौदा पड़ा था।
Dust bowl. Expansion of wheat agriculture in the Great Plains created a problem. In 1930s, terrifying dust storms began to blow in the southern plains when black blizzards rolled in, and very often the 7,000 feet high, rising like a monstrous wave, and muddy water, same day after day, year after year, through the 1930s. As the sky is dark and the dust swept in, the people are blinded and choked. Cattle were suffocated to death and their lungs caked with the dust and mud. Sand buried fences and the covered fields and coated the surface of the river until the fish died. Dead bodies of the birds and animals were strewn all over the landscape. Tractors and machines that had ploughed the earth and harvested the wheat in the 1920s were now clogged with a dust damage beyond repair. What had gone wrong? Why these dust storms in a part of they become the early 19th century 30s very ever year of the persistent drought? The rain failed year after year and the temperature soared. The wind blew with a furious speed, but the ordinary dust storms became a black blizzards only because the entire landscape had been ploughed over a strip of the all grass and held it together. When wheat cultivation had expanded dramatically in the early 20th century, the zealous farmer had recklessly uprooted all the vegetation, and tractors had turned the soil over and broken the sod into dust. The whole region had become a dust bowl, and the American dream of a land of plenty had turned into a nightmare. The settler had it tough, and they could conquer the entire landscape, turn all the land over the growing crops, and that could yield profit. After the 1930s, they realized that they had to रिस्पेक्ट द इकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ ईच रीजन। अब देखिए कहीं ना कहीं क्या हुआ, जब एक जो ये डस्ट स्टॉर्म आया था तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये मॉन्स्टरस वेव थी ये काफ़ी ज़्यादा मडी वाटर और बाकी का सारी चीज़ों को डे आफ्टर डे 1913 की अगर बात करें तो डे जो स्काइज थी ये डार्कन होना शुरू हो गई थी। लोग जो थे पीपल्स आर ब्लाइंड एंड चोक्ड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन हो गई थी, सफोकेटेड डेथ हो रही थी लोगों की। लोगों के लंग्स में जो है डस्ट और मड भरती चली जा रही थी। सैंड बुरी फैंसेस जो थी ये कई सारी जो फिशेस थी, रिवर्स थी, सारी चीज़ें जो है मरती जा रही थी, और इन सारी वजहों से कई सारे ट्रैक्टर्स मशीन जो हार्वेस्टेड मीट थे ये सब पूरी तरह से क्या है डस्ट के नीचे दब गए थे, और ये डैमेज ऐसा हुआ था कि ये रिपेयर भी कभी शायद ही किया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं जो ये क्या गलत हो गया था, ये डस्ट स्टॉर्म क्यों आया था। तो अगर हम बात करें 1913 के अर्ली टाइम की, तो जो ड्राफ्ट की कंडीशन थी, यानी रेन्स फेल हो गए थे, टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रहा था, वाइंड ब्लू जिस तरह से फेरिशियस स्पीड में आ रही थी, तो ये सारी रीजन्स की वजह से कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल कंडीशन जो है किसी भी जोग्राफिकल एरिया की वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है वेजिटेशन और बाकी सारी चीज़ों के लिए। तो इन सारी चीज़ों को समझ पाना तब थोड़ा डिफ़िकल्ट था, और इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो उन्हें फेस करनी पड़ी। When wheat cultivation had expanded dramatically in the early 20th century, तो जब ये wheat का प्रोडक्शन जो है जब बढ़ा था, तो कई सारे ऐसे झीलेस फार्मर्स थे जिन्होंने बिना ध्यान दिए जो है बहुत सारा वेजिटेशन कर लिया, और कहीं ना कहीं जो सॉइल है और बाकी सारी चीज़ें जो है ये किसमें एज अ ब्रेक हो गई डस्ट में। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं डस्ट बाउल ही बनती चली गई। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये जो है लैंड्स जो है क्रिएट करना शुरू कर दिए, यानी जितना एरिया हमें चाहिए था उससे कई ज़्यादा एरिया में अगर हमने कल्टिवेशन करना शुरू किया तो जो भी डस्ट और बाकी का सारी चीज़ें हुई, तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो है इकोलॉजिकल कंडीशन हर जगह की अलग अलग है, और हमें उस चीज़ की क्या है उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हमें उन्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। द इंडियन फार्मर एंड द ओपीएम प्रोडक्शन। अब देखिए जो इंडियन फार्मर है उनका ओपीएम प्रोडक्शन जो है ये उससे रिलेटेड है। ओपीएम बेसिकली क्या है, ये गांजा है, और इसे कई तरह से यूज़ किया जाता है एज अ मेडिसिनल पर्पज़ और इन दी other purpose. Let us now move to India and see what happening in the Indian countryside in the late 18th and the early 19th century. As you know, British rule was gradually established in India after the Battle of the Plassey. Over the period of the colonial rule, the rural landscape was radically transformed. The British saw the land revenue as a major source of the government income. To build the resource of the state was made to impose a regular system of the land revenue increases and the revenue rate, and expanded the area under cultivation. As cultivation expanded, the area under the forest and pastures declined. All this created many problems of the peasants and pastoralists. They found their access to the
protests and grazing lands increasingly restricted by rules and the regulations, and they struggled to meet the pressures of the government revenue demand. The colonial period rural India also came to produce a range of the crops of the world market. In the early 19th century, the indigo and opium are two of the major commercial crops. By the end of the century, peasants were producing the sugarcane, cotton, jute, wheat, and the several other crops for export and to feed the population of the urban Europe and to supply the mills of the Leicester and the Manchester in the England. How did the Indian cultivators respond to the entry into the modern world of the international commerce and trade? Let us look at the history of the crop opium and to get an idea of the colonial rule meant to the peasants. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जैसे अगर हम बात करें कहीं ना कहीं इंडिया की, तो ग्रेजुअली जिस तरह से यहाँ पे प्लासी की लड़ाई के बाद जो कॉलोनियल रूल आया, इसके बाद क्या रेडिकली इंडिया जो है कहीं ना कहीं जो इंडिया का लैंडस्केप है वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया था। कई सारी जो नकदी फसलें हैं, जैसे कि उन्होंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंड है और ये जो है एक बहुत ही मेजर इनकम है यहाँ का, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया गया, ये धीरे धीरे इसे बढ़ा भी दिया गया और मेजर इनकम जो है इससे ही की जाने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो प्रॉब्लम है, जो कई सारा बोझ है, ये किस पे पड़ने लगा, कई सारे पीसेंट्स और फार्मर्स पे बढ़ने लगा। कल्टीवेशन एरिया बढ़ाने के लिए जो उन्होंने किया है, तो कई सारे फॉरेस्ट एरिया को क्या किया उन्होंने, साफ़ कर दिया गया। लेकिन फॉरेस्ट एरिया साफ़ करने से कहीं ना कहीं जो पास्चर्स बाकी के एनिमल्स के लिए मिल रहा था वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन होते चला जा रहा था। तो पीसेंट्स और पेस्टोरलिस्ट को इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और काफ़ी इंक्रीजिंग रिस्ट्रिक्टिंग इनके लिए रिस्ट्रिक्ट रूल्स को रेगुलेशंस भी ला दिए गए, जो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर्स भी था गवर्नमेंट का इस पर और रेवेन्यू डिमांड को कंप्लीट करने में। कॉलोनियल पीरियड के आने के बाद साथ कई सारे चेंजेस आए मार्केट में। तो बेसिकली इन द अर्ली 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इंडिगो और ओपियम ये ऐसे दो मेजर कमर्शियल क्रॉप्स थे जिसको उगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा रहा था, प्रेशर किया जा रहा था। इसके साथ साथ जो और भी पीजेंट्स थे वो शुगर केन, कॉटन, जूट, वीट और भी बाकी सारी चीज़ें जो है उसकी सारी चीज़ों को बेसिकली प्रोड्यूस करने में ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अच्छी तो हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही थी। बेसिकली जो पॉपुलेशन अर्बन यूरोप की थी, इन सारी जगहों पे ये जो मिल्स थे, लेस्टर और जो मैनचेस्टर था इंग्लैंड का, ये सारी चीज़ों का सप्लाई ज़्यादातर वहीं हो रहा था। अ टेस्ट फॉर टी एंड द ट्रेड विद द चाइना। The history of opium production in India was linked up with the story of the British trade with China. In the late 18th century, the England of East India Company was buying a tea and silk from the China for a sale in England. As the tea became a popular English drink, the tea trade became more and more important. In 1785, about 15 million pounds of tea was being imported into England. By 1830, the figure had jumped to over 30 million of pounds. In fact, the profit of the East India Company came depend on the tea trade. This created a problem, and England at this time produced nothing could be easily sold in China. The Confucian ruler of the China Manchus was supposedly foreign merchant. अब देखिए यहाँ पे जो है क्या बताया गया है कि ओपियम का प्रोडक्शन जो है इंडिया में बढ़ तो रहा था, इसकी स्टोरी जो है कहीं ना कहीं चाइना की और ब्रिटिश ट्रेड तक पहुँच रही थी। अगर 18th सेंचुरी की बात करें तो जो इंग्लिश इंडिया कंपनी है वो टी और सिल्क जो है चाइना से खरीद रही थी और मतलब वहाँ पे सेल कर रही थी। जो टी है बहुत बड़ा इंग्लिश ड्रिंक पॉपुलर होते जा रहा था, तो टी का जो ट्रेड है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर 1785 की बात करें तो कम से कम 15 मिलियन जो पाउंड्स थे वो टी में ही इंपोर्ट किए जा रहे थे इंग्लैंड की तरफ से। तो 1830 में अगर देखें तो जो फिगर था ये बढ़ के और भी ज़्यादा हो गया। तो प्रॉफिट जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का ये काफ़ी ज़्यादा टी ट्रेड पे डिपेंड होने लगा। In such a situation, how could a Western merchant finance the tea trade? How could they balance their trade? They could buy a tea only by paying the silver coins or bullions. This went outflow of a treasure from the England and prospect to created a widespread anxiety. अब देखिए कहीं ना कहीं ये जो है ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी इनके लिए, क्योंकि इस सिचुएशन में जो वेस्टर्न मर्चेंट थे इनके लिए टी का ट्रेड फाइनेंस करना या उसके बैलेंस को मेंटेन करना या फिर टी को ख़रीदना है तो उसकी जगह उनके सिल्वर कॉइन्स देना या बुलियंस देना पड़ते, तो ये कहीं ना कहीं आउटफ्लो हो रहा था उनके प्रोस्पेक्ट से। इट वॉज बिलीव दैट द लॉस ऑफ ट्रेजर वुड बी इम्प्रोविश द नेशन एंड डिप्लीट द वेल्थ। और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो है लॉस है ट्रेजर का जो कि इम्प्रोविश कर रहा है किसी नेशन को और उसके वेल्थ को। मर्चेंट ने फिर जो है ये सारी चीज़ों को स्टॉप किया और लॉस ऑफ सिल्वर जो है उन्होंने रोकना शुरू किया और इसकी जगह जो है दूसरी कमोडिटी
के बारे में सोचने लगे सेल करने के लिए इन चाइना में, जो ऐसी चीज़ हो जो कि वो परस्यूट कर सकें एंड चाइनीज़ उसे बाय कर सकें। ओपियम was such a commodity that Portuguese had introduced opium into China in the early 16th century। और ओपियम ही एक ऐसा जो कमोडिटी है वो बन के आया और पोर्तुगीज़ ने इसे इंट्रोड्यूस किया चाइना में अर्ली 16th सेंचुरी में। ओपियम जो है ये हाउएवर एक मेडिकल प्रॉपर्टी है जिसे मेडिसिन पर्पज़ से ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, लेकिन चाइनीज़ जो थे इसके जो बाकी के एडिक्शन और बाकी चीज़ों को जानते थे, इससे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अवेयर थे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, इसका यूज़ वहाँ पे ज़्यादा करना शुरू कर दिया। इसके बाद वाइल द इंग्लिश कल्टिवेटेड टेस्ट फॉर चाइनीज़ टी एंड द चाइनीज़ बिकम एडिक्टेड टू ओपियम। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ने जो टेस्ट निकाला चाइना की जो टी थी उसका उन्हें बेसिकली वो उसके एडिक्टेड हो गए, और चाइनीज़ जो है किस चीज़ के एडिक्टेड हो गए, ओपियम के एडिक्टेड हो गए। तो ये ड्रग शॉपकीपर्स, पेडलर्स, ऑफिशियल्स, आर्मी मैन और बाकी सारी जगहों पर ये काफ़ी ईजिली उन्हें मिलने लगा। देखिए जो शिप्स हैं ये अराइव हो रही है फ्रॉम चाइना, जो कि बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन है उसमें और किस चीज़ के लिए वो लाई गई है। ये सोर्सेस से लिया गया पिक्चर है। नाउ वी सी वेयर डिड द ओपियम केम फ्रॉम। अब ओपियम कहाँ से आ रहा है वो देखिए। दिस इज़ वेयर द इंडियन पीजेंट्स केम टू द स्टोरी। और ये यहाँ पे ही जो है इंडियन पीजेंट्स जो इंडिया के किसान हैं वो अब स्टोरी में आए। व्हेन द ब्रिटिश कॉन्कर्ड अ बंगाल दे मेड अ डिटरमाइंड एफर्ट टू प्रोड्यूस ओपियम इन द लैंड्स अंडर देयर कंट्रोल। अब जब ब्रिटिश ने क्या किया, बंगाल को जीत लिया, तो उन्होंने ये सोचा वहाँ पर ये जोर लगाया किस चीज़ का, ओपियम को प्रोड्यूस करने का। जैसे जैसे मार्केट जो है एक्सपांड होना शुरू हुआ, बेसिकली जो चाइना का वॉल्यूम है ओपियम का, ये धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ने लगा। तो ये बिफोर 1767 की बात करें तो यहाँ पे 500 चेस्ट यानी 2 माउंट्स ईच की अगर हम बात करें, इससे ज़्यादा इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं होता था। लेकिन विद इन 4 ईयर जो है क्वालिटी ये ट्रेबल्ड हो गई, और 100 ईयर लेटर की अगर बात करें यानी 80-70s की, तो गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था इसे कितना 50,000 चेस्ट, और ये एनुअली हो रहा था। Supply had to be increased to feed this booming export trade, but this was not easy. How could the cultivators buy pursued to grow opium? अब इतना जो सप्लाई हो तो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये इतना ईजी नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना ओपियम उगा पाना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स they were unwilling to turn their fields over to a poppy. First, the crop to be grown on the best land on the field at the near village and were well manured. पहली चीज़ तो ये गाँव के किसी पास जगह पे इसे उगाया जा सके, और ऐसी जगह पे उगाया जहाँ की मिट्टी में मैन्योर प्रॉपरली हुआ हो। On this land, the peasants were produced pulses. If they planted opium on this land, the pulses could not be grown there. और ऐसी ही ज़मीन पे क्या वो पल्सेस उगाते थे, दाल वगैरह उगाते थे, लेकिन अगर वहाँ पे उन्होंने ओपियम उगाया तो उस चीज़ को नहीं उगा सकते थे। और दे वुड हैव टू बी ग्रोन ऑन इन्फीरियर लैंड वेयर द हार्वेस्ट वर पुअर एंड द अनसर्टेन। और अगर उसे उगाना है तो फिर किसी ऐसी जगह पे उगाना पड़ता था जहाँ पे हार्वेस्ट करने के बाद काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट है और अनसर्टेन है। सेकेंड, मैनी कल्टिवेटर्स ओन नो लैंड एंड टू कल्टिवेट दे हैव टू पे अ रेंट टू लीज फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। कई लोगों के पास कल्टिवेटेड लैंड नहीं थे, अगर उन्हें कल्टिवेट करना तो उसके लिए रेंट या लीज जो है उन्हें लैंडलॉर्ड को पे करना होता था। And the rent charged on the good lands near a village were very high. Third, the cultivation of opium was difficult process। और थर्ड जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, कल्टिवेशन करना ओपियम के लिए बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस थी, क्योंकि प्लांट जो होते थे इसके काफ़ी डेलिकेट होते थे, और कल्टिवेटर जो होते थे ये इसे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग आवर्स लेते थे नर्चरिंग के लिए। तो ये क्या था, इसका मतलब ये था कि इन्हें इनफ टाइम चाहिए, केयर चाहिए क्रॉप्स के लिए। फाइनली जो प्राइस है गवर्नमेंट ने पेड करना शुरू किया कल्टिवेटर्स के लिए, वो उससे वो जो ओपियम जिस तरह से प्रोड्यूस हो रहा था उसके मुकाबले काफ़ी कम था, और इट वॉज अनप्रॉफिटेबल। और ये कहीं ना कहीं क्या था, अनप्रॉफिटेबल भी था किसके लिए, कल्टिवेटर्स के लिए, टू ग्रो ओपियम एट दैट प्राइस। यानी जिस तरह का रेट गवर्नमेंट दे रही थी उस रेट पर उस चीज़ को उगाना और उसको रखना, ये कहीं ना कहीं क्या काफ़ी महंगा सौदा पड़ रहा था उनके लिए। हाउ वर द अनविलिंग कल्टिवेटर्स मेड टू प्रोड्यूस ओपियम। अब अनविलिंग कल्टिवेटर्स के लिए ओपियम प्रोड्यूस करना कैसे था, क्या था, किस तरह से था, ये हम देखेंगे यहाँ। अनविलिंग कल्टिवेटर्स were made to produce opium through a system of advances in the rural area. The Bengal and Bihar were a large number of poor peasants, and they never had enough to survive. It was difficult for them to pay rent to a landlord or buy food and clothing from 70-80. The peasants found very headmen given a money advances to produce opium. अब देखिए यहाँ पे जो है लोग जो थे काफ़ी ज़्यादा
अगर हम बात करें बिहार और बंगाल की तो काफ़ी ज़्यादा गरीब थे। यहाँ पे नंबर ऑफ़ पुअर्स जो पीजेंट्स किसान थे इनकी तादाद ज़्यादा थी, और यहाँ पे इन सारी चीज़ों को उगाने के लिए हेडमैन से, यानी जो भी वहाँ के महत्व पर्सन्स होते थे वहाँ पे उनसे क्या था, उनसे एडवांस लिया गया और ओपीएम को प्रोड्यूस करने की शुरुआत की गई। तो उन्होंने जहाँ पे कई तरह के लोन्स जो है उनके लिए ऑफ़र किए गए, कल्टिवेटर्स को अटैम्प्ट किया गया, एक्सेप्ट किया गया होप, और इस तरह की होप की गई कि इमीडिएट नीड्स जो है उनकी पे बैक कर दी जाए ताकि वो अच्छे से अच्छा क्या करें, कल्टिवेशन उसका कर सकें। इट वॉज द गवर्नमेंट ओपीएम एजेंट हु वर एडवांसिंग द मनी टू द हेडमैन। और ये जो थे, जो हेडमैन्स के पास पैसे आ रहे थे, किससे आ रहे थे, गवर्नमेंट के थ्रू आ रहे थे, क्योंकि वही उनको क्या करते हैं, एडवांस पेमेंट दे रहे थे। हु इन टर्न टू गिव इट टू द कल्टिवेटर्स एंड, और ये जो थे ये उनको दे रहे थे ताकि वो जो है अच्छी से क्या करें, उसकी पैदावार कर सकें। He had no option for planting the field with of his choice or for selling his produce anymore, but the government agent and he had accepted the low price offered for a produce। और कहीं ना कहीं जो था इनके पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो प्लांट करें फील्ड में और अपनी चॉइस से उसे सेल करें। ये जो है कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट एजेंट था उनके पास ये हो गया था, क्योंकि वो उसे लो प्राइस में ऑफ़र करके एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। प्रॉब्लम कुड हैव बिन पार्टली सॉल्व बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ओपीएम। और जो है कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हुई कब, जब गवर्नमेंट ने इसका रेट बढ़ाया, यानी ओपीएम का रेट जब उन्होंने बढ़ाया तब जाके उनका उसे कल्टिवेट कर पाना और उसे बेच पाना उनके लिए थोड़ा क्या हुआ, आसान हुआ, कहीं ना कहीं उनके फ़ायदे के सौदे की बात की गई। British government in Bengal had established a monopoly for a trade in opium. No one else was legally permitted for their product. By the 1820, British found the horror opium production in the territory was rapidly declining. The production outside the British territory was increasing. It was produced in the central India and Rajasthan within the princely states were not under the British control. In this region, the local trader offering the higher prices and peasants and exporting the opium in China. अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, कहीं ना कहीं ब्रिटिश जिस तरह से बेसिकली ओपियम को उगा रहा था, कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा था। और हॉरिबली अगर हम दूसरी जगह की बात करें, जैसे सेंट्रल इंडिया की राजस्थान और बाकी की जगह, ये प्रिंसली स्टेट थे, तो यहाँ पे धड़ल्ले से क्या हो रहा था, ओपीएम उगाया जा रहा था क्योंकि इसकी अच्छे प्राइस मिल रही थी, और चाइना को क्या किया जा रहा था, इसे दिया जा रहा था। तो द ब्रिटिश दिस स्टेट वॉज इलीगल, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश के लिए ट्रेड जो तो क्या थी, वो इलीगल थी। तो उन्होंने क्या किया, इसको बंद किया, और गवर्नमेंट की मोनोपोली आई कि ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्टेड एजेंट द्वारा ही भेजी जाएगी, और कई सारी जो प्रिंसली स्टेट है उनको बताया जाएगा कि ओपियम जो उन्होंने उगाया है उसे क्या करना है, अपनी फसलों को डिस्ट्रॉय कर देना है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड पीसेंट ऑफ द लोकल कंटिन्यू एज लाइक द ओपियम प्रोडक्शन इज लास्टेड। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट और पीसेंट के बीच का जो ये युद्ध चल रहा था, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है तब तक चला जब तक कि ओपियम का प्रोडक्शन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, या लास्ट प्रोडक्शन जब तक नहीं रहा था। Could now, however, think that the experience of all peasants in India were like those of opium cultivator. We will read about the experience of peasant in colonial India in the later chapter. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है बेसिकली कि किस तरह से उन्हें फील हुआ या क्या चीज़ें उन्हें महसूस हुई, वे सारी चीज़ों के प्रोडक्शन के बाद किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा, वो सारी चीज़ें जो है वो लेटर चैप्टर में हम देखेंगे। फाइनली कंक्लूजन क्या निकला, देखिए यहाँ पे In this chapter you saw the rural areas in different parts of the world change in the modern period। मतलब आपने इसमें देखा कि डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड की अगर हम बात करें उनकी कंट्रीज़ की, तो वहाँ के रीजन में कैसे धीरे धीरे मॉडर्न पीरियड में वो चेंज हुए। While looking in these changes वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर पैटर्न वॉज नॉट इन द सेम एवरीवेयर। और ये सारी चीज़ें जब हम देख रहे हैं तो हमें ये भी समझना चाहिए कि इन सारी चीज़ों का पैटर्न जो है वो सेम नहीं है हर जगह पे। ऑल सेक्शंस ऑफ अ रूरल पीपल आर नॉट अफेक्टेड इन द सेम। सारे जो रूरल पीपल हैं वो सेक्शंस क्या है, सेम वे में अफेक्ट नहीं हो रहे। सम गेन एंड अदर लॉस, कुछ को मिल रहा है, कुछ जो है लॉस में जा रहे हैं। नॉर वॉज द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्नाइजेशन सिंपली ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम हिस्ट्री बात करें मॉडर्नाइजेशन की तो ये इतनी ग्लोरियस नहीं रही है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, सिंपली ही रही है। इट वॉज ऑल्सो स्टोरी ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट एंड द इम्प्रूवमेंट, इकोलॉजिकल क्राइसिस एंड सोशल रिबेलियन, कॉलोनिज्म एंड रिप्रेशन। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ स्टोरी डिस्प्लेसमेंट और इम्प्रूवमेंट की नहीं है, बल्कि इकोलॉजिकल क्राइसिस क्या थे, सोशल रिबेलियंस क्या थे, कॉलोनाइजेशन क्या था, रिप्रेजेंट क्या था, ये सारी चीज़ों को देखते हुआ है। वी नीड टू लुक एट दिस वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ अंडरस्टैंड हाउ द डाइवर्स वेज इन विच द पीजेंट एंड फार्मर कन्फ्रंटेड द मॉडर्न वर्ल्ड। और हमें यहाँ पे ये समझना है कि कितने ज़्यादा इतने सारे वेरिएशंस और सारी चीज़ें डाइवर्सिटीज़ होने के बाद भी किस तरह से पीजेंट और फार्मर थे जो इन्होंने इन मॉडर्न वर्ल्ड की चेंजेस को कन्फ्रंट किया और उसे झेला, और आगे चल के उन्होंने काफ़ी अच्छे से इन सारी चीज़ों को संभाला। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया। इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर एट एनी पार्ट यू हैव अ डाउट, प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू फॉर द डे।